Hello everyone, this is Rajdeep. Myself, Shumantu. This is Hitesh. And we are GlobeServe. We aim at providing all the essential marketing and business development services with potent business ideas. If you are a business person or willing to start a new business, we would love to stand beside you at every step of your growth. If you are an entrepreneur and you are worried about your business, then from now on, you don't need to do that because we provide value without valuable. Stay connected, we'll be back. So welcome to another podcast of the Inside Buddha, and today is a really special one because this is the first live podcast that we are doing, and what better way to start than with a few old friends of mine. And I'm very proud that I could say that my friends are finally entrepreneurs and living their dream. And because nothing is easy in life, job is not easy, business is not easy, and obviously starting your own business is never easy. You have to learn many things, and I'm sure many of you watching are sitting right by their key. Let's learn something, like we don't know where to start, maybe we fail, maybe we'll pass this. So this is a phase. So what better way that each and every one single we have started, we have also worked in previous company, so we know nits and knacks of each other. So let's start and let's know that their GlobeServe, what they actually do, and from their point 0 till point 1. So thank you so much Pradyumji for inviting in this awesome experience of Inside Buddha. We are really happy to be here and share our experiences with you all. So let's get it started. Sure. Let's go. So Razi, can you share that what is GlobeServe and what you do? Right. Sure. Hello everyone. So my name is Rajdeep. I am from Jalpaiguri, West Bengal, as Pradyumji told you guys. So GlobeServe, I'll be very short and straight to the point. We are a one-step solution to those businesses, those who find difficulty in achieving or those who find difficult in growing. So we as a marketing agency provide those strategies and business development services that help them grow and become a much more successful company or a business. So straight to the point is like we are a marketing agency, those who help businesses grow by providing marketing services. That's Great. Great. So there are several businesses, right? Like there are several jobs. Now the trend of entrepreneurship wave has started in India as well. So there were n number of ways to start. So why GlobeServe? Like why was this digital marketing agency your first go-to? Like you could have done anything, right? You could have gone to like maybe product based. You could have done something else. Correct. So why this marketing agency? Alright, so actually it's not that this is the first thing. Before this we have tried many things. As we like, I guess you don't know, but my father has a cloth business, right? And Rajdeepji's father has an electronics business, right? And like we are already from a business family, so during the lockdown we have seen a lot of like downtime in the market, right? And I used to stay in Kolkata, and Rajdeepji Rajdeepji and we all used to work in the same company. So after I came back home, I saw that the condition is very much worse, and at that time we had to enter our family business. I used to sit in my shop like from morning to night time, and then I realized that no, the digital space, right, it has a huge opportunity. People of this area are not doing much in the digital space. So then I thought of taking my business online. I also created an Instagram page, right? I promoted my father's business online. I also got sales, right? I also got leads and customers from there. And then I had a conversation with Rajdeepji. So let's start something with the digital space, right? The people who are facing this problem, because they are big marketing companies, right? And they want high-paying clients, but these people are not high-paying clients, and neither these people can go to those like big companies. So who will fill the gap in between? So that's why we decided before that we also thought of doing affiliate marketing. We also thought of doing only website building and SEO, but it did not click somewhere. But then when we found this niche, and it somewhere clicked, and yeah, we're producing results. We have also created one brand on the way, not actually brand, we started and it's on the way of becoming a brand.
and such we are like such 3-4 projects are currently like we're working with. Great, great. So that's how we started. Great. So one thing that I understood from your talk was that you failed many times. Yes. Right. And the essence of this business line or this entrepreneurial line is failing. Right. It might sound a little bit stereotype, but yes, in order to succeed, you need to fail a couple of times or many times. So let me ask you, while starting this, what was your biggest hurdle that you faced? इन दैट पॉइंट एक्चुअली हम लोग को क्या होता है कि हम लोग को पता नहीं था कुछ मार्केट के बारे में कि कैसे कम करता है ये सब. एक्चुअली नॉर्मली मेरा तो बैकग्राउंड नहीं था, ये लोग का बैकग्राउंड था, फिर भी मार्केट में क्या होता है क्या नहीं होता है, चाहिए क्या लोगों को, लोगों को क्या चाहिए, वेबसाइट, लोगों को चाहिए सोशल मीडिया मार्केटिंग, हम लोग को पता नहीं था. ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को फेस किया था दैट टाइम. बट ये हम लोग सोचा कि ठीक है फिर देखते हैं क्या होता है. उसके बाद हम लोग ने बहुत रिसर्च किया, बहुत लगभग 2021 का पूरा साल हम लोग रिसर्च ही किया था. कोई एग्जीक्यूशन नहीं था हम लोगों का, क्या करे क्या नहीं करे, हर रोज़ कुछ ना कुछ रात 3-4 बजे तक हम लोग डिस्कस किए थे कि कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या अदर जो एजेंसी होता है ना मार्केटिंग एजेंसी, वो लोग क्या करता है, बट हम लोग क्या डिफ्रेंशिएट करें उस पूरा स्पेस में, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मार्केट है ना. तो उस टाइम में हम लोग इतना सारा रिसर्च किया बट कुछ नेटफॉल कुछ नहीं आया था. तो हम लोग को ये पता चला कि हम लोग को एग्जीक्यूशन करने के बाद ही मिलेगा आंसर. जो डेटा हम लोग को चाहिए मार्केट से वो हम लोग काम करने बाद ही आएगा वो सब. तो इसलिए फर्स्ट जो हम लोग का क्लाइंट था कि जो फुचका का ब्रांड है हम लोग का गोगोस, वो फर्स्ट हम लोग का क्लाइंट था. तो बात करने से हम लोग को समझ आया कि ओके ठीक है, देखते हैं क्या होता है. उसके बाद हम लोग स्टार्ट किया तो फिर समझ गया अच्छा ये हम लोग को काम करना होगा. हर जो बिजनेस है ना नॉर्मल मार्केट में सबको नहीं चाहिए. एक सब्जी बाजार जो है, जो सब्जी वाला है वो उसको नहीं चाहिए डिजिटल मार्केटिंग, बट एक जो फुचका का ब्रांड है इसको चाहिए. कुछ होता है जो लोग को चाहिए, कुछ को नहीं चाहिए. तो ये हम लोग को देखना होता है. तो ये फर्स्ट जो हम लोग को प्रॉब्लम हम लोग फेस किया था कि क्या होगा क्या नहीं होगा. तो So you identified the problem and उसके बाद you broke down कि कैसे कर सकते हो. Great. So like you were speaking कि सबसे एक हर्डल आया था कि एक साल रिसर्च पे गया था, right? And इंडियन मेंटालिटी या बोल सकते हो पेरेंट्स स्पेसिफिकली माइंडसेट ये होता है कि अगर लड़का या अपना बेटा जो भी बैठा हुआ है घर में, सो एक प्रेशर आता है ऑब्वियसली. एंड मैनी जो भी अभी स्टार्ट करने वाले होंगे या मेंटल अभी भी दिमाग में है कि शायद करे ना करे, तो एक हर्डल आता है कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे, राइट? वी हैव टू ऑब्वियसली, अभी यूएस में एक ट्रेंड है कि 18 के बाद यू हैव टू गो आउट ऑफ योर हाउस, राइट? इंडिया में दैट इज आफ्टर 22, राइट? तो 4 साल का गैप ऐसे ही है. वी आर ऑलरेडी 4 years बैक फ्रॉम देम, एंड आफ्टर दैट अगेन यू आर टेकिंग अ ईयर ताकि यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ. बट दिस थिंग पेरेंट्स तक शायद कन्वे नहीं हो पाता उस हिसाब से. एक प्रेशर बिल्डअप ऑलरेडी रहता है. तो उस चीज़ को कैसे टैकल करते हो? बिकॉज ऑब्वियसली प्रेशर इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स यू हैव टू शो देम रिजल्ट्स. तो जब रिजल्ट्स नहीं दिखा पाते हो, कुछ नहीं हो सकता, जीरो है, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग इन बैक, मतलब बैक फुट पे आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, अभी फ्रंट फुट पे बॉल मारना बाकी है. तो उस मेंटालिटी के बारे में थोड़ा बताइए. श्योर. सो ऐसा है कि बात जब हम लोग स्टार्ट किया था तो देयर वाज, एज हिदेश टोल्ड दैट वी वर वर्किंग ऑन अनदर कंपनी. सो वहाँ से रिजाइन करना हुआ. रिजाइन करने के बाद वी स्टार्टेड आवर ओन वेंचर. तो वो वेंचर स्टार्ट होने के बाद इट वाज लाइक फैमिली में ये एक बात घूम रहा था कि फिर से दोबारा स्टार्ट करने का क्या है, एवरीथिंग इज गोइंग राइट, बट व्हाट इज़ द नीड ऑफ स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन, एंड लाइक ज़रूरत क्या है ये सब करने का, ठीक ही तो चल रहा था सब कुछ लाइक. तो इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू एक खुद का एक इंडिविजुअलिटी आ जाता है बीच में कि आई लिव बिकॉज ऑफ माई ओन choices, right? Yeah. So in that case, in that scenario, people, लोगों को क्या होता है कि they choose their parents or they choose their fear that oh shit, if I'm not gonna succeed, what would happen? Let's choose the easiest way out. So in that scenario, we choose ourselves, not the fear, not the parents. तो in that scenario हम लोग मन में थोड़ा सा डर भी था
बट या लाइक देयर वाज अ कांस्टेंट फाइट कि खुद का सुने या पेरेंट्स का सुने, बिकॉज दे वर एक्सपीरियंस्ड, दे ऑलवेज वांट गुड ऑफ अस. तो उस सिचुएशन में लाइक इट टुक रियली लाइक थोड़ा सा डिस्परेशन लेवल था कि, और ये थोड़ा सा पैशन भी था अंदर से कि वी नीड टू चूज आवरसेल्व्स रादर देन पेरेंट्स, और द फियर कि क्या हो जाएगा, कब आगे क्या होगा. तो इन दैट सिनेरियो इट वाज द कांस्टेंट 2 years स्ट्रगल दैट स्टिल अभी भी होता है. अभी भी लाइक माय मॉम और हितेश मॉम और Shomanto's mom is like, let's fill that form now. Or they also say you could have done a better job, like you could have completed your studies and gone for an interview. Yeah, वो चलता ही रहता है, like that is never ended. And till this point ये हम लोगों को like सोचने की मजबूर करता है कि this will never end. Like उन लोग वैसे ही सोचेंगे, right है ना, भले के लिए सोचते हैं. But yeah, like straight to answer your question is like we choose ourselves rather than आगे क्या होगा नहीं होगा, बिकॉज हम लोग खुद के लिए जी रहे हैं, ठीक है. तो इफ वी विल नॉट एबल टू डू व्हाट वी वांट, देन हम लोग लाइक वेयर वी विल बी, कहीं नहीं रहेंगे. तो दैट इज वेयर वी चूज्ड आवरसेल्व्स एंड देन इट ऑल स्टार्टेड लाइक. ग्रेट. यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, जो कि अभी होता है क्या है ना, ठीक है, मम्मी पापा तो बोलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उन लोगों को इस डिजिटल स्पेस के बारे में या फिर अभी इस टाइम पे वर्ल्ड पे क्या चल रहा है उसके बारे में बहुत कम पता है. उन लोग एक्सपीरियंस है लाइफ के तरफ से, उन लोग बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन करियर के मामले में अगर वो चाहते हैं कि नहीं मैं अभी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके शायद मैं कोई बैंक में नौकरी करूँ, 20,000 25,000 जो भी सैलरी, हाँ कहीं ना कहीं सेफ्टी है, तो उन लोग वो सेफ्टी के पीछे भागते हैं ऑब्वियसली. क्योंकि उन लोगों ने बहुत फेस किया. मेरे पापा भी बिजनेसमैन है, तो शायद उनको पता है कि एक बिजनेस बिल्ड करने में कितना टाइम लगता है, कितना स्ट्रगल, कितना एफर्ट लगता है. तो शायद वो उन लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम लोग उतने मेहनत ना करें, राइट. तो लेकिन यहाँ पे अब हम लोगों को ये चीज़ देखना था कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं. तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोगों को उन्हीं लोगों का बात सुनना पड़ेगा जो ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ हम लोग पहुँचना चाहते हैं, राइट. तो हम लोगों ने उस टाइप के लोगों को जब फॉलो करना स्टार्ट किया, डिफरेंट एजेंसीज के को फाउंडर्स के जब हम लोगों ने इंटरव्यू देखा, उन लोगों का काम करने का तरीका देखा, राइट, तब हम लोग के अंदर भी कॉन्फिडेंस आया कि नहीं चलो इसके ऊपर, हाँ हम लोग इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना, हम लोग काम कर सकते हैं. और जो गैप हम लोग देख पा रहे हैं वो गैप बहुत बड़ा है, उसको भी हम लोग फिल कर सकते हैं. एंड दैट्स वेयर विल स्टैंड आउट फ्रॉम डिफरेंट मार्केटिंग एजेंसीज. तो वही कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने आप को, लाइक जैसे राजदीप ने बोला कि वी चूज आवरसेल्व्स, तो वहीं से वो कॉन्फिडेंस आया. But it took time. But it took time. It Yes. took lot of time. जो सुमंतो जी ने बताया, दिन भर रात भर वो रिसर्च, वो डिस्कशंस, वो एक लूप होता है कि हम लोग गोल गोल करते रहते हैं. तो उसमें क्या होता है कि हम लोग को पता नहीं होता, क्लियरिटी नहीं है ना, क्योंकि एक्सपीरियंस तो नहीं है. इस लोगों के पास भी फिर भी बैकग्राउंड था, मेरे पास तो वही भी नहीं था. मेरा फादर गवर्नमेंट जॉब करता था, तो मेरा माइंडसेट ये था कि हमको जॉब ही करना है. बट मैंने जब इस सिनेरियो में आया कि ये देखा, ओके ऐसे भी हो सकता है, तो उसके बाद मैंने ठीक है देखता है क्या होता है. बैकअप तो है ना मेरे पास, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं जो बात करता हूँ कि मेरे पास बैकअप है, कुछ भी नहीं होता है तो जॉब हो जाएगा. तो लेट्स टेक ए चांस, क्या होता है फिर देखते हैं, एक्सपीरियंस तो होगा. तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अभी हम लोग का सभी यंग एज है, तो हर कोई जो वीडियो देख रहा है अभी यंग एज में, तो हम लोग को अभी रिस्क लेना है, बहुत सारा रिस्क लेना है, क्योंकि हम लोग के बहुत टाइम है, क्योंकि फैमिली प्रेशर नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है. तो अभी खुद के ऊपर काम करो, खुद के ऊपर काम करो, खुद के ऊपर रिस्क लो, तो तभी सीख पाओगे. ये मेंटेलिटी लेके मैंने स्टार्ट किया था कि ठीक है हो जाएगा. कॉन्फिडेंस वहाँ पर से आया कि ठीक है रिस्क लेंगे, फिर भी चलता है वो. सही बात. जो सब में एक लाइन कॉमन था कि ट्राई करते हैं, ठीक है, देखते फिर क्या होता है. और एक चीज़ कि टू ऑल द लिसनर्स कि इफ़ यू आर गोइंग टू बाय अ मारुति, ठीक है, take a suggestion from someone who is a Maruti owner. If you are going to buy a Mercedes, please don't go and take suggestion from Maruti owner. Take a suggestion from Mercedes owner, right? Because he will guide you well, because he has already reached that stage. So yes, obviously, if you are going to, for example, XYZ, whatever field you're going, please talk to the people who have already reached there or already are in that field, because they will tell you the struggles. If you're going someone like he's senior to you, that's why you're asking. So obviously, he may guide you in a wrong way. ही माइट से कि भाई जॉब ही कर ले, इससे बेटर है ना. तो ग्रेट, उसके लिए तो वही सही है ना. करेक्ट.
बिकॉज वो अपने स्टैंड पॉइंट व्यू से बोल रहे हैं। स्टैंड पॉइंट यूज कर, तो हर चीज, हर कोई का स्टैंड पॉइंट अलग अलग होता है, तो हम लोग को देखना होता है कि हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग का पर्सनलिटीज क्या है। एक जो प्रॉब्लम है वो आता है कि अभी जो एंटरप्रेन्योरशिप का वेव है, सबको ही बिजनेस करना है, बट सबका पर्सनलिटी वो नहीं होता है कि ठीक है कोई सिक्योरिटी चाहता है बट वो बिजनेस करना चाहता है, बट ये नहीं होगा। तो ये भी हम लोग को देखना होता है। जॉब बुरा नहीं होता है, बिजनेस बुरा नहीं होता है, दोनों में ही प्रोज एंड कॉन्स होता है, बट हम लोग को वो देखना था हम लोग के साथ क्या मैच कर रहे हैं, तो उसके बाद ही स्टेप्स लो। बिकॉज यहाँ पे भी इक्वेशन वही है कि मे बी 100 स्टार्टअप्स है, ठीक है, शायद 10 चलेंगे, एंड अगर 10 चल भी गए तो लॉन्ग रन में मे बी 3 रहेंगे, राइट। सो स्टेक्स आर हाई, तो ऑब्वियसली वी आर नॉट जस्ट प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप बिकॉज जस्ट इज अ वेव। ये भी चीज है कि मे बी यू आर स्टार्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप, यू मे डू इट, वी ऑल से कि जस्ट गो फॉर इट, बट इफ इट फेल्स, ऐसा मत सोचो कि ये इंडस्ट्री खराब है, राइट। तुम मतलब जॉब भी शायद मे बी यू आर मेंट फॉर जॉब, like maybe you're good at it, maybe you will earn more, right, you will earn more in job than you earn in your business. You see you earn more than a business person, right, वो that is cup of tea जैसे हम लोग बोलते हैं। maybe job is someone's cup of tea, maybe business is someone's cup of tea, any। ये थोड़ा रेस चलता है कि बिजनेस करो या जॉब करो, तो ये ठीक नहीं है। मेरे कंपैरिजन को नहीं चाहिए हम लोग को, ये देखना होता है मैं क्या चाहता हूँ लाइफ से। सबका ही तो सेम नहीं होता ना, मेरा कुछ चाहिए उसका कुछ चाहिए, तो ये हम लोग को देखना होता है पहले। तो ये हम लोग सब मिस कर देते हैं क्योंकि ट्रेंड अभी है, ये शार्क टैंक जो आया था, इसके बाद सबको ही बिजनेस करना होता है, तो इसके वजह से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चला जाता है, बहुत रिस्क भी होता है, तो वो हम लोग को देखना होता है पहले। तो ट्रेंड से मत चलो, मैं यही बोलूंगा, ट्रेंड से मत चलो, खुद के ऊपर देखो क्या खुद को आता है क्या नहीं आता है, उसके बेस पे काम करो। ट्रेंड से मत चलो बट ट्रेंड बनाओ, ट्रेंड बनाओ, ट्रेंड से ट्रेंड बनाओ, राइट। ग्रेट। सो ग्लोबसर्व, लेट्स टॉक अबाउट दैट कि ग्लोबसर्व जन ऑब्वियसली यू डिड योर रिसर्च कि कहाँ हम लोग कर सकते हैं, और देन यू स्टार्ट, चलो एक गैप है मार्केट में, दैट डिजिटल एजेंसी मे बी जो लोग मे बी शॉपकीपर्स को नहीं चाहिए बट मे बी जो लोग थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं छोटे सिटी में शायद, तो मे बी दे वांट सर्विस बट दे आर नॉट गेटिंग इट, राइट। सो उस गैप को यू फाउंडेड। आफ्टर दैट जो ब्रांड बिल्डिंग हम लोग बोलते हैं कि चलो यूर अप्रोचिंग, यू कांट अप्रोच कि चलो भैया मैं तुम्हारे एक ब्रांड बना दूंगा, ठीक है, विद अ स्लिपर एंड योर वॉट एवर, यू डिजाइंड योर टी शर्ट्स, राइट, यू क्रिएटेड अ वीडियो फॉर योर सेल्फ। सो what went through, like क्या skills you learned in that process, and what are you still learning, and obviously your each and individual part, what was your part in this in GlobeSurf? Sure. So yeah, I'll start from myself. So starting में ऐसा कुछ तो रोल डिफाइन था नहीं, like we just started all together कि like we have to do it as a three as a whole, but later on after, like you said, the first part of your question was like the shopkeepers होते हैं, like how did we figure out कि किन लोग के साथ जाना है, तो excuse me, तो in that case वो हम लोगों ने एक मतलब वही कि हम लोगों के पास कुछ वैसा कुछ प्लानिंग था नहीं कि इन लोगों को अप्रोच करना होता है ऐसे और इन लोगों को अप्रोच करना नहीं होता है। वी डिडंट नो दैट क्योंकि नो प्रायर एक्सपीरियंस, तो बस जस्ट वी वेंट, बस हम लोग वी वेंट एंड देन वी हैड अ टॉक कि दिस इज द थिंग दैट वी वांटेड टू डू। सो द फर्स्ट क्लाइंट जो हम लोग ने बात किया था, वो विश्वमोदो जी ने जो बात किया था कि फुचका का जो कैफे था उसका, तो ही हैड अ स्टॉल। तो हम लोग जब ग्लोबसर्फ था ही नहीं, तो देन ही आस्क्ड अस वन डे कि आई वांट टू टेक माय बिजनेस इन द नेक्स्ट लेवल, जब ग्लोबसर्फ नहीं था। तो we were just I was just I just working in the previous company then. Yeah, I just visited Hitesh's home and then we went to have fuchka. So and then that brother was like, I want to take my business in the next level, how can we help? How can you guys help? तो in that scenario उस टाइम में हितेश ने बहुत हेल्प किया था उसको कि ऐसे ऐसे करो, तो उसको हेल्प हुआ था। देन वी हैड ए लाइक अंदर तो था कि स्टार्टअप करना है, बिजनेस करना है, तो वो एक बैक लाइक मोटिवेशन था कि अच्छा हम लोगों ने हेल्प किया था, तो वो एक अंदर से वो फायर जो पीछे से वो पुश कर रहा था, तो दैट प्लेड ए वेरी गुड इंपॉर्टेंट रोल। तो जब हम लोगों ने लॉन्च किया देन वी अप्रोच्ड हिम फर्स्ट कि वी आर स्टार्टिंग एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टोल्ड अस 2-3 months अर्लियर, लेट्स स्टार्ट। तो ही एग्रीड, तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, लाइक वो स्टार्ट हो गया। हाँ, तो वो स्टार्ट होने के बाद पीपल आर लाइक
people used to call that brother and tell and ask कि वो लड़का लोग कौन है जो तुमको हेल्प कर रहा है कि who are they. So then that भैया used to tell them कि this ये ऐसे कुछ करते थे. Used to approach, then those people used to approach us कि word of mouth. हाँ, word of mouth, simple word of mouth कि अच्छा तुम लोगों ने हेल्प किया भैया को, like तो मेरा भी ये एक बिजनेस है, हेल्प कर सकते हो क्या. तो that was the start. जो answering your question is like that was the start. So that's how it started. Just word of mouth. We didn't do any online advertising. We are not able to. In fact, till now we haven't put our involvement in Instagram post. Okay. तो वो कुछ भी है नहीं अभी तक फिलहाल तो. No online marketing and such. So that's how it started. We got 3 to 4 projects just by word of mouth. तो because in this our जो हम लोग जहाँ पे रहते हैं in this north east side of India, ऐसा कुछ होता नहीं है. मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं कि those who help businesses to grow. Wow, like वैसा कुछ था ही नहीं. तो this was the start, answering your question. But later when we started, तो Google ads और Facebook ads के बारे में पढ़ना start हुआ हम लोग का. This was the first thing that we had to learn. तो YouTube, that's the free, almost free information available in the whole internet. So YouTube से start किया कि how can we run Google ads and Facebook ads. Right. Later on we figured out that okay, we need to make Instagram post for clients. So Shomanto ji played a very important role in that department. Shomanto ji is a very good designer since birth, not since birth. Here is a story. I Yeah, will tell you. he had a very photogenic face. So from very earlier, from his school days, he used to click awesome pictures, and his social media is full of beautiful pictures. Creative profile. Creative profile, yeah. So he had an interest in that area, and so he took the step on that field. Let's learn graphic design. Yeah, right. that's how he Then started. let's learn design. Yeah. Actually, especially design. तो ये क्या हो रहा कि एक साथ मैंने जो मेरा जो एक्सपीरियंस था डिजाइनिंग का कि मैं एक हाथ में सीख रहा था, दूसरे हाथ में काम कर रहा था. तो बड़ा फेज था मेरे लिए कि ये तो मेरा ट्रांजिशन नहीं था. हम लोगों का क्या होता है कि पहले हम लोग काम सीखते उसके बाद काम करते. बट जो फेज था हम लोगों का कि हितेश का कोई एक रोल है, राजदीप का कोई एक रोल है, तो मेरा भी एक रोल होगा. तो काम तो मैंने पहले नहीं सीखा था. तो ये क्या हो रहा था कि एक हाथ में मैं डिजाइनिंग सीख रहा, उसके साथ साथ मैं काम कर रहा हूँ. तो ये बड़ा फेज था मेरे लिए पर्सनली कि उस टाइम में मेरा बहुत सेल्फ ग्रोथ हुआ कि कैसे कैसे काम होता है. मेंटल स्टेबिलिटी, जो फर्स्ट पॉइंट, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं था कि काम कितना लोड होता है, कितना प्रेशर होता है कंपनी में. तो वो मेरे को बहुत हेल्प किया था कि उस टाइम में. तो उसके बाद मैंने डिजाइनिंग फील्ड में और भी डेप्थ गया, जाते गया तो बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ उस टाइम. तो नॉट इन ग्राफिक डिजाइन, एक्चुअली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द जर्नलिस्ट डिजाइन, जिसको सब आता है, बट डेप्थ नहीं है, बट सब आता है. क्योंकि मेरे को तो जॉब करना नहीं है डिजाइनिंग में, मेरे को टीम बिल्ड करना है जहाँ पर मैं लीड कर सकता हूँ सबको. तो कोई होगा यूएक्स डिजाइनर को, ग्राफिक डिजाइनर होगा, तो सबको मैं लीड कर सकता हूँ. ये मेरा थॉट प्रोसेस था. Spoke like a true entrepreneur because entrepreneurs खुद कम काम करते हैं, लोगों से काम कराते ज्यादा है. But in first हम लोग खुद को काम करना. वो तो सीखना पड़ेगा ही. तो ये था हम लोग का स्टार्टिंग. उस टाइम हितेश में काम किया था, कंटेंट राइटिंग, डेटा एनालिसिस में काम कर रहा था. उस टाइम राजदीप काम कर रहा था कि कैसे डील करें क्लाइंट के साथ. ये हम लोग का 3 डिवाइडेड रोल था कि ये इतना काम करेगा. क्योंकि एक साथ आ जाने से क्या होता है कि काम ठीक से नहीं होता. डिपार्टमेंट भाग हो गया तो काम अच्छे से होता है, जल्दी होता है. तो ये हम लोग का सेटअप था, रोल डिवाइडेड. एंड एज यू स्पोक कि आई विल टेक 2 पॉइंट्स फ्रॉम योर कन्वर्सेशन कि 1 कि मैक्सिमम पीपल अभी सोचते कि ओके आई हैव टू स्टार्ट दिस एक्स थिंग बट आई डोंट हैव नॉलेज. नॉलेज ऑब्वियसली ओपन सोर्स पड़ा हुआ है सब कुछ, यूट्यूब, गूगल, एवरी. अगर नहीं भी है तो टॉरेंट. इन माय केस डिजाइनिंग बहुत कॉस्टली होता है. करेक्ट. बट मेरा पहले दिन से ये था कि घर से कोई पैसा नहीं लेंगे, जो भी करेंगे फ्री पे करेंगे. जुगाड़ कि मैंने बहुत सीरियसली लिया था कि नॉलेज फ्री होता है, तो मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा. तो उसके बाद मैंने आज जो भी सीखा सब फ्री में सीखा. तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं तो सीख नहीं सकता. इंटरनेट कनेक्शन है, लैपटॉप है, तो हर कुछ होता है.
इंटरनेट में, तो आप सीख सकते हो पहले। एक्चुअली यहाँ एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा मैं कि वी डिडंट नो दैट अच्छा सब कुछ अवेलेबल होता है क्या इंटरनेट में, एक क्वेश्चन आ जाता है, एक डाउट आ जाता है। बट जो मैं लिसनर्स को बताना चाहूँगा कि द एबिलिटी टू थिंक कि अच्छा, टू एबिलिटी टू क्वेश्चन कि ओके ओ माय गॉड सिचुएशन बी लाइक कि कैसे सब कुछ फ्री में अवेलेबल हो सकता है, तो इतना सब कुछ स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस क्या खाक सिखा रहे हैं, मतलब व्हाई दे एग्जिस्ट, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अराइजेस इन आवर माइंड, राइट। तो the most important thing is in this scenario is when you are creating your own baby, for example a venture is like a baby, तो or anything like you want to create by yourself, तो एक ओपन माइंडेडनेस से उस सिचुएशन को अप्रोच करना इज लाइक अ वेरी गुड चॉइस, कि someone who will not be able to understand that situation will be like अरे नहीं, he will have a preconceived notion कि नहीं होता है इन्फॉर्मेशन फ्री, कैसा बात कर रहे हो तुम, लाइक तो ये सब इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, एंड समवन विल बी लाइक नहीं देखते हैं, अगर है तो बढ़िया, नहीं है तो ठीक है। तो उस अप्रोच को आई थिंक वी थ्री ऑल हैड दैट अप्रोच, या लेट्स सी, मिले तो अच्छा, ना मिले तो और अच्छा, लाइक वी विल फाइंड सम अदर वे, ना मिले तो फिर लेना है ही, करेक्ट, बट जस्ट गो एंड हैव अ लुक कि अच्छा मिलता है या नहीं, जस्ट चेक, just like question कि is it or not, like वो एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है। I think that helped us learn so many things। और कहीं ना कहीं लोग ये भी सोचते हैं ना कि यार फ्री का होगा तो वैसा ही होगा, वैल्यू कम हो जाता है, तो वही सोच के लोग फिर अटक जाते हैं, फिर खोजते हैं कि नहीं कोर्सेरा, यूडेमी, अपग्रेड। तो लेकिन मतलब थैंक्स टू यूट्यूब एंड थैंक्स टू दिस एरा कि अभी भी मतलब बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर है, अच्छे यूट्यूबर है, अच्छे टीचर्स है जो फ्री में लाइक लोड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं सिखाने के लिए, राइट। सो हम लोगों को जस्ट वो राइट सोर्स खोजना पड़ेगा, और उसके लिए जो जैसे राजदीप ने बोला कि ओपन माइंडेड रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, चलो देखते हैं ना क्या है, जो मिलेगा उसी से स्टार्ट करते हैं, वही बात है। सही बात है।